Let us see the next question. Consider following information. Information is provided with respect to two securities, security A and security B. Beta information is given for each of them and expected returns have been given to us. The risk-free rate of return is 10%. Whether given expected returns are as per CAPM, that is whether the returns are required rate of return or as per past experience or expected future growth rate, means whether they are as per CAPM or it is mean return. So from the given information we are required to identify this. I request you to calculate the answer and tell me your answer in the chat box. Friends, over here हम लोग ऐसा मान लेते हैं ये जो दोनों रिटर्न्स हमको दे रखे हैं या तो वो यूजिंग CAPM है या तो दोनों रिटर्न्स हमको मीन रिटर्न दे रखा है। दो में से एक ही होगा, एक ये होगा दूसरा ये होगा, ऐसा हम लोग पता कर सकते नहीं है। देखो, जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न एज पर CAPM होता है उसमें कंडीशन है क्या, that say that the required rate of return is calculated using a formula like this: RF plus beta into RM minus RF। ये इसका कंडीशन है। सो कॉरस्पॉन्डिंग टू बीटा हमेशा हमको रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट हम लोग करते हैं। हम लोग ऐसा कंडीशन वेरीफाई करेंगे कि क्या ये दोनों रिटर्न्स एज पर CAPM है या नहीं। अगर हमारा कंडीशन जो है वो फुलफिल नहीं होता है, देन इन दैट केस बोथ द रिटर्न्स आर बेस्ड ऑन मीन रिटर्न, और अगर हमारा कंडीशन सेटिस्फाई हो जाता है देन इन दैट केस बोथ द रिटर्न्स आर एज पर CAPM, ऐसा हम लोग मान लेंगे। सो लेट अस अंडरस्टैंड ऐसे हम लोग कैसे इसका कंडीशन वेरीफाई करेंगे। फ्रेंड्स, हम लोग ऐसा समझते हैं दैट, लिसन केयरफुली, सिक्योरिटी A एंड सिक्योरिटी B दोनों के लिए इंफॉर्मेशन दे रखा है। दिस इज 12 एंड दिस इज 33, दिस इज 10 एंड दिस इज 10 जो हमको क्वेश्चन में दे रखा है। दिस इज 0.20 एंड दिस इज 1.50। मैं RM माइनस RF को x वेरिएबल असाइन करता हूं यहाँ पे, और RM माइनस RF को यहाँ पे मैं y वेरिएबल असाइन करता हूं। ये दोनों वैल्यू क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। अगर x का और y का वैल्यू सेम है देन इन दैट केस बोथ द रिटर्न्स आर बेस्ड ऑन CAPM। अगर वो दोनों अलग अलग है देन इन दैट केस बोथ द रिटर्न्स आर नॉट एज पर CAPM बट दे आर मीन रिटर्न। सो वी अंडरस्टैंड इट से यहाँ पे इक्वेशन कुछ इस हिसाब से सॉल्व होगा। लेट मी एक्सप्लेन यू फर्स्ट ऑफ ऑल। रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न is RF plus beta into RM minus RF. So RM minus RF is equal to required rate of return minus RF divided by beta। ऐसा किया जाएगा। हम लोग दोनों सिक्योरिटीज के लिए कैलकुलेशन करेंगे, सिक्योरिटी A के लिए और सिक्योरिटी B के लिए। एज फार सिक्योरिटी A इज कंसर्न, उसके लिए हम लोग ऐसा समझ सकते हैं, दिस इज 12, दिस इज 10 डिवाइडेड बाय बीटा। A सिक्योरिटी का बीटा दे रखा है 0.20, B सिक्योरिटी का रिटर्न दे रखा है हमको क्वेश्चन में 33%। RF is 10 divided by 1.50. So 12 minus 10 is 2. 2 divided by 0.2, that comes to 10%.
33 minus 10, 23, divided by 1.5, that is 15.33. ये दोनों वैल्यू आपस में मैच नहीं हो रहा है, तो दोनों रिटर्न्स जो है वो एज पर मीन रिटर्न है, ऐसा हम लोग समझेंगे. So I request all of you to write down answer along with me. We understand that both returns are as per CAPM, or they are mean return. Full stop. We will check condition of returns to be as per CAPM. Full stop. If conditions do not satisfy, comma, both returns are as per mean return, otherwise it would be return as per CAPM. Full stop. ये नोट सिर्फ आपके समझने के लिए है. Now the answer will be like this. Assuming that both returns are as per CAPM, comma, RM minus RF is calculated taking each of the security into account. Taking each of the security into account. So उसमें हम लोग लिखेंगे required rate of return is equal to RF plus beta into RM minus RF. Required rate of return is equal to beta into RM minus RF. RM minus RF is equal to required rate of return minus RF divided by beta. हम लोग कैलकुलेशन दोनों सिक्योरिटीज के लिए करेंगे, सिक्योरिटी ए एंड सिक्योरिटी बी इन आर एग्जाम्पल. ए सिक्योरिटी, बी सिक्योरिटी. ए सिक्योरिटी के लिए 12 minus 10 divided by 0.2, that comes to 10%. And for the other one it is 33 minus 10 divided by 1.50.
It is 15.33%. Then we can write the conclusion like this. Conclusion is about two values do not match. So, given returns are mean return. Full stop. ओके, समझा देता हूँ। चलो, इशिका अग्रवाल, योर पॉइंट इज क्लियर बेटा? मिस इशिका अग्रवाल, या थैंक यू बेटा। नहीं शिवानी, ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि मीन रिटर्न क्या हो सकता है बेटा? मीन रिटर्न ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। तो मीन रिटर्न का कोई भी ऑथेंटिसिटी नहीं है। ऑथेंटिसिटी किसका है? रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न का है। इसलिए हम लोग पहले मीन रिटर्न नहीं कर सकते बेटा। ओके चलो, आप किसी को वापस समझना तो चैट बॉक्स पे लिख के मेरे को बताइएगा, अदरवाइज आई अज्यूम दैट एवरीबॉडी इज क्लियर। चलो, किसी को डाउट या क्वेरी हो तो चैट बॉक्स पर लिखिएगा, अदरवाइज आई अज्यूम दैट एवरीबॉडी इज क्लियर with the alternative method also, which I want to explain you. So this is the conclusion that say we draw over here with respect to the calculation.